خبروں کے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں صوبائی وزیر مواصلات چودھری علی افضل شاہی کی زیر صدارت آئی ڈیپ کا 57واں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبہ بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام بروقت مکمل کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی۔ علی افضل شاہی کا کہنا تھا کہ فیصل آباد ڈویژن بھر میں بلڈنگز اور روڈ سیکٹر کی ماہانہ کارکردگی رپورٹ جمع کرائی جائے۔ اے ڈی پی سی ایم پیکج کی اسکیموں کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمران اسلم سے۔ عمران، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، صوبائی وزیر مواصلات علی افضل شاہی کی زیر صدارت جو ہے وہ اہم اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اجلاس میں فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے ایس سیز نے جو ہے وہ اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں جتنے بھی جاری ترقیاتی کام ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے۔ فیصل آباد ڈویژن میں بلڈنگز اور روڈ سیکٹر کی اسکیموں کو بروقت جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے جو ہے ماہانہ کارکردگی رپورٹ محکمہ CNW کو ارسال کرنے کے اقدامات جاری کیے گئے ہیں۔ صوبائی وزیر مواصلات کو جو ہے وہ سیکٹری مواصلات مجاز شدیل کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر جو ہے وہ فیصل آباد ڈویژن سے روڈ سیکٹر اور بلڈنگ سیکٹر کے حوالے سے جو ہے وہ صوبائی وزیر مواصلات کو آگاہی دی گئی۔ فیصل آباد میں جو ہے وہ اربوں روپے سے زائد کے جو ہے وہ فنڈ جو ہے وہ ADP اور CM پیکج کے تحت سڑکوں کے لیے جو ہے وہ دیے گئے ہیں، اور اسی طرح فیصل آباد میں سرکاری ملازمین کے منصوبہ GO3 کی تکمیل کا کام بھی جو ہے وہ بریفنگ میں شامل کیا گیا، اور صوبائی وزیر مواصلات کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی کہ فیصل آباد ڈویژن بھر میں روڈ سیکٹر کی اسکیموں کو جو ہے وہ جلد سے جلد پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ٹینڈرنگ کے نظام میں شفافیت کو برقرار رکھتے ہوئے تمام کنٹریکٹ کو پابند کیا جائے کہ مقررہ وقت میں جو ہے وہ جتنے بھی سرکاری پروجیکٹ ہیں وہ مکمل کریں، اور معاہدہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف محکمانہ طور پر جو ہے وہ کارروائیاں کی جائیں۔ صوبائی وزیر مواصلات کی جانب سے تمام ایسیز کو تنبیہ کی گئی ہے کہ رشوت ستانی میں ملوث کارروائیاں کی جائیں۔ عمران اسلم آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ یہاں آپ کو بتائیں سابق حکومت پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کردہ پراپرٹی ٹیکس کے لیے جائیدادوں کا سیٹلائٹ سروے کا منصوبہ تاحال التوا کا شکار۔ پراپرٹی ٹیکس کے نظام میں شفافیت اور جدت لانے کے لیے جائیدادوں کا سیٹلائٹ سروے ممکن نہ ہو سکا۔ سروے ٹیکس نیٹ میں غیر رجسٹرڈ اور کم ٹیکس دینے والی جائیدادوں کا تعین کرنے کے لیے ہونا تھا۔ منصوبہ پراپرٹی ٹیکس کے نظام میں شفافیت اور جدت لانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ موجودہ حکومت نے بھی منصوبے پر عمل درآمد کے لیے کوئی اقدام نہ اٹھایا۔ فیصل آباد میں پراپرٹی کے کاروبار سے وابستہ تاجروں کا حکومت سے بڑا مطالبہ۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ پراپرٹی کی رجسٹریشن اور منتقلی پر ٹیکس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار دوبارہ سے بحال ہو سکے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شہراز پر سے۔ شہراز، آگاہ کیجیے گا۔ ڈالر کے مسلسل اضافے کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طریقے سے باقی دیگر کاروباری شعبے جو ہیں وہ متاثر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پراپرٹی کا ایک واحد شعبہ تھا جو کہ اس کے باوجود ترقی کر رہا تھا، لیکن گزشتہ 6 سے 7 مہینے ہو چکے ہیں کہ پراپرٹی کا بزنس بھی جو ہے وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ کب تک امید ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے اور کیا ٹیکسز میں کمی ہوگی؟ نئے آنے والے سال کے ساتھ کیا نئی امیدیں اس شعبے سے وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میاں تنویر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، پورے پنجاب کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ کو کیا حالات نظر آ رہے ہیں پنجاب میں؟ صورتحال پراپرٹی کے حوالے سے کچھ بہتری کی طرف جاتی ہوئی دکھ رہی ہے اگلے سال؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جب تک گورنمنٹ جو ہے بہتر پالیسیز نہیں بنائے گی تو یہ صورتحال مجھے بہتر ہوتی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ اس وقت جیسے آپ فیصل آباد کو دیکھیں، اگر ماسٹر پلان ہے وہ ابھی تک اپروو نہیں ہوا، لوگ غیر یقینی کی صورتحال میں ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، میں نے کل پرسوں ایک شاپ بائی کی ہے، اس کی کوئی قیمت ہوگی 15 لاکھ روپیز۔ اب اس کے اوپر جو گورنمنٹ کے ایکسپینس ہے وہ 2 لاکھ روپے ہے، جو اس کی رجسٹری کے، میں پھر اس کی رجسٹری کیوں کرواؤں گا؟ آپ بتائیں گے 15 لاکھ لگا کے مجھے 2 لاکھ پروفٹ ہوگا تو وہ مجھے بیلنس پڑے گی؟ تو اس جو یہ بے جا ٹیکسز ہے یہ آپ کی پراپرٹی کی قیمت کو بڑھا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، اچھا گورنمنٹ مقاصد ہمارے کیا ہے؟ ریونیو اکٹھا کرنا۔ اچھا ریونیو کی یہ پوزیشن ہے کہ جہاں پر 500 جو ہے ٹرانسفر ہوتی تھی، جو لیگل ٹرانسفر رجسٹری جس کو کہتے ہیں، وہاں پر اب 50 رہ گئی ہے، 60 رہ گئی ہے۔ لوگ جو ہے وہ فائلوں کے اوپر ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ انسیکیور ہے کیونکہ ان کی لیگل بات نہیں۔ جب آپ کی
पैसा अनसिक्योर होगा तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? ये एक बेसिक लॉजिक है। अच्छा, जैसे अब जो डॉलर जो है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बाहर एक्सपोर्ट को बहुत इशू आए हैं, लोगों ने जिंदा तो रहना, वो बेचारे फिर इस तरह जो है रिस्क ले लेते हैं फाइलों के ऊपर। ठीक है, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, लेकिन अब ओवरसीज इन्वेस्टमेंट भी रुकी हुई है और लोकल इन्वेस्टर भी है वो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है। उसकी वजह रजिस्ट्री इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी नहीं है। शराज भट्ट आगाह कर रहे थे। इस हवाले से बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में बढ़ते किराए के मकानों का रुझान 5 से 10 मरले वाले किराए के मकानात आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। बदतर मुआशी हालात के सबब लोग तंग और छोटे घरों में रहने पर मजबूर हैं। हमारे नुमाइंदे फसी नकवी इस वक्त प्रॉपर्टी डीलर के साथ मौजूद हैं। फसी, बताइएगा, किराए के मकान लेने वालों में ज्यादातर डिमांड कितने मरले वालों की है? जी बिल्कुल, किराए के मकानों का तो हम पहले ही बता चुके हैं कि शहर फैसलाबाद में जो रेंटल हाउस जो सिस्टम है वो जिस तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक और बात जो फोकस करने वाली है वो ये है कि कैसे जो पहले 10 मरले की डिमांड किया करते थे अब वो 5 मरले के ऊपर आते जा रहे हैं। जो पहले 5 मरले की डिमांड किया करते थे शहरी, अब वो 2.5 से 3 मरले के ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रॉपर्टी डीलर अब्दुल कद्दूस मौजूद हैं जो कि सरगोदा रोड, मिल्लर टाउन और इसके साथ गुलिस्तान कॉलोनी के साथ साथ जो मुल्हिका इलाके हैं उनको डील करते हैं। हमारे साथ ही मौजूद है। सर, बताइएगा कि क्या वजूहात देखते हैं कि लोग जो है छोटे मकानों में अब रहना जो है वो रुझान उनका बढ़ता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नकवी बेटे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि छोटा पार्टीशंस होती जा रही हैं, और मैं यहाँ एक बहुत ज़्यादा एक बात क्लियर करूँ कि जो रेंट पे मकान इस्तेमाल करते थे या रेंट पे मकान देते थे, अब जो मालकान हैं उन्होंने 5 मरले को 2.5 मरले के 2 पीस कर दिए। 2.5 मरले को पीस करने के बाद ग्राउंड फ्लोर अलहदा चढ़ाते हैं किराए पे और फर्स्ट फ्लोर अलहदा चढ़ाते हैं, और उस हिसाब से जहां आगे पहले 5 मरले के कोई तकरीबन 25-30 हज़ार में मिल जाता था किराए पे, अब वही जो है लाख रुपए पे चला गया। उसने उसके 4 पोर्शन कर दिए। अब यह है कि 10 मरले वाला 5 मरले कर दिया, पीसेस करके जो है ना। अब छोटी सी जो असल भयानक हालात है, सूरत हाल है फैसलाबाद की और ये मुल्का आबादियों की, कि इतनी ज़्यादा गुंजान हो गई है कि ना आप साइकिल मोटरसाइकिल खड़ा कर सकते हैं, ना आप कार तो सारी गली में खड़ी करेंगे। आप 2.5 मरले में आप कार कहाँ खड़ी करेंगे? अगर छोटी सी फैमिली किराए पे आती है, मुलाजमत करती है, छोटा मोटा कारोबार करती है, तो अब चोरी चकारी बहुत बढ़ गई है, बीमारी बहुत बढ़ गई है। बहुत बढ़ गई। दूसरी जानिब राना शफीक साहब मौजूद है जो कि झंग रोड को डील करते हैं। इसी वाले से जी आप बताइएगा कि अगर हम फसी नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं, सोने की कीमत में इजाफा हो गया। फी तोला सोना 5 रुपए महंगा हो गया, 1,57,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपए मजीद महंगा हो गया, 1,43,604 रुपए का हो गया। आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला सोना 500 रुपए महंगा 1,67,500 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 429 रुपए महंगा 1,43,604 रुपए का हो गया है। पंजाब हुकूमत और महकमा ज़राअत की जानिब से किसानों के लिए अच्छा इक़दाम। तोबा टेकसेंग में काश्तकारों को फास्फोरस और पोटाशियम खाद पर सब्सिडी दी जाएगी। कितनी सब्सिडी दी जाएगी जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उसामा यासीन से। जी उसामा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गंदम की बुआई का सीज़न जारी है। जैसे यूरिया खाद अहम ज़रूरत है खेत की, इसी तरह फास्फोरस खादे पे जो अहम ज़रूरत है। इसी के पेश नज़र हुकूमत पंजाब और महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकार हजरात को सब्सिडी दी जा रही है फास्फोरस और पोटाश खादों पर। इसी वजह से बात भी कर लेते हैं। मेरे साथ महकमा ज़राअत से डिप्टी डायरेक्टर असलम साहब मौजूद है। सर, बताइएगा फास्फोरस खादों को कितनी अहम ज़रूरियत है खेतों के लिए और कितनी सब्सिडी दी जा रही है? काश्तकार कैसे रब्ता कर सकते हैं इस वजह से? फसल गंदम की अच्छी पैदावार के लिए नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस और पोटाश खादों की भी ज़रूरत होती है, और इन तीनों खादों का जो मुतवाज़न इस्तेमाल है वो बहुत ज़रूरी है। तो ज़मींदार की पैदावारी लागत कम करने के लिए जो फास्फोरस की खादें चूँकि महंगी हैं उन पर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। DAP पे फ़ी बैग 1,000 रुपये, NPK पे 300 रुपये फ़ी बैग, नाइट्रोफास और सिंगल सुपर फास्फेट पे 200 रुपये फ़ी बैग के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। खादों के थैलों में से जो वोचर निकलता है उसका नंबर स्क्रैच करके ज़मींदार भाई 80-70 पर जब भेजते हैं तो उनको उनकी सब्सिडी का मैसेज आ जाता है और जो उनकी रकम है वो उनके अकाउंट में मुंतकिल हो जाती है। तो मेरी काश्तकार भाइयों से गुजारिश है कि गवर्नमेंट की ये सहूलत से फ़ायदा उठाएँ और यूरिया के साथ साथ
फास्फोरसी और पोटाश खादों का भी मुतनासिब मकदार में महकमाना सिफारिशात के मुताबिक करें ताकि उनकी फसल गंदम की पैदावार में इजाफा हो सके और उसामा यासीन खुशहाल। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया उसामा आपका। फैसलाबाद गुलाम मोहम्मदाबाद में शहरियों ने मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। शहरी मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई और मजे मजे के खानों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अहमद साद से। अहमद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे जैसे जो है सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो रहा है, तो शहरियों की जानिब से भी जो है यहाँ पे खाने खाए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, कीमा और मजे मजे के जो है वो खाने, उनसे शहरी जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अपने दोस्तों, फैमिलीज के हमरा जो आए हैं और यहाँ पे सर्दियों को एंजॉय करने के लिए जो है वो गर्मा गर्म खाने खा रहे हैं। इसी वाले से हमारे पास कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे पूछती हैं। तो भाईजान ये बताइएगा, क्या खा पी रहे हैं? सर्दियाँ इसमें किन खानों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं? जी, हम लोगों ने बकरा जो कढ़ाई लगवाई थी, दोस्तों के साथ आए हैं, बड़ा एंजॉय किया माशाल्लाह। इनका बड़ा अच्छा टेस्ट था और सर्दियां आपको इनके तरफ आते हैं इनके पास, और माशाल्लाह जो है ना बड़ा अच्छा टेस्ट है और लुत्फानंदोज होते हैं खानों से। अच्छा भाईजान ये बताइएगा, आपके इधर क्या ऐसा टेस्ट है कि जो शहरी हैं, गुलाम मोहम्मदाबाद के जो बासी हैं, आपकी दुकान की तरफ खींचे चले आते हैं? क्या मशहूर चीज़ है आपकी? जो हमारे पास दाल माश है, मशहूर दाल चावल है, और मटन कढ़ाई है, चिकन जलफेजी है। चिकन जलफेजी जो है वो बहुत लोग पसंद करते हैं, क्रीम में बनाते हैं हम लोग, तो वो लोगों को पसंद आती है। चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, मखनी, ये सब चीज़ें हमारे पास होती हैं। पहले से हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछती हैं। तो भाईजान ये बताइएगा, क्या खा पी रही हैं, किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं खा पी के अपने दोस्तों के साथ? अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा एंजॉयमेंट कर रहे हैं। ये सर्दियों का महीना है और इसमें कभी कभी हम इधर आया करते हैं। खाना बहुत लजीज होता है। अक्सर इन्हों की हमें मटन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा मशहूर है। हम अक्सर दोस्तों के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है इन्हों के साथ खाना खाने के लिए। ये बहुत पुरानी शॉप है, इसलिए अक्सर हम आया करते हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि जो शहरी है वो जो है वो खाने एंजॉय कर रहे हैं। सर्दियों की रातों में जो है वो गर्मा गर्म खानों से जो है वो लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ आए हैं, फैमिलीज के साथ आए हैं। यहाँ पे जो है चिकन कढ़ाई, उसके साथ साथ मटन कढ़ाई, जलफ्रेजी, कीमा और ऐसे दीगर जो चीज़ें हैं, चटपटी चीज़ें जो है उनसे लुत्फ अंदोज हो रही हैं। जी अहमद साद, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में बल्दियाती इदारों के ऑडिट अफसरान के हवाले से अहम खबर। मुलाजमीन का देरीना मुतालबा पूरा कर लिया गया है। ऑडिट अफसरान को स्केल 16 से स्केल 17 में तरक्की देने के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। ग्रेड 16 के वो तमाम ऑडिट ऑफिसर जिनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा था कि उनका ग्रेड बढ़ाया जाए, वन टाइम प्रमोशन के तहत जो उसी ग्रेड में भर्ती हो रहे थे, तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से मंजूरी दे दी गई। अब इन तमाम मुलाजमीन का जो है वो ग्रेड बढ़ाया जाएगा। फैसलाबाद समेत पंजाब भर में जितने भी ऑडिट ऑफिसर्स ग्रेड 16 में मौजूद थे, अब उन्हें ग्रेड 17 मिल सकेगा। मुलाजमीन का देरीना मुतालबा था जो अब पूरा कर लिया गया, जिसकी वजह से अब उनके जो वाजबा था वो भी बढ़ सकेंगे, उनका स्केल बढ़ेगा। उसके साथ साथ जितने प्रिविलेजेस हैं वो भी उनके बढ़ सकेंगे। तो ये बड़ी अहम खबर है कि यहाँ पर यूनियन की जानिब से भी ये मुतालबात सामने आ रहे थे। इसके अलावा भी मुलाजमीन दरीना मुतालबा कर रहे थे कि वन टाइम प्रमोशन के तहत तमाम मुलाजमीन की प्रमोशन हो रही है, उनकी नहीं हो रही, जिस पर अब उन्हें भी जो ग्रेड 17। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूथ विंग की जानिब से शेख फाइक नूरी को मरकजी डिप्टी मीडिया कोऑर्डिनेटर बना दिया गया। इंसाफ यूथ विंग के मरकजी सदर मीना खान आफरीदी ने नामजदगी की मंजूरी दे दी है। पार्टी रहनुमाओं कारकुनों की जानिब से जिम्मेदारी मिलने पर फाइक नूरी को मुबारकबाद का सिलसिला भी जारी है। उधर झंग में जमात इस्लामी की जानिब से माहाना मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में किसानों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। मीटिंग की सदारत जिला अमीर महर फरीद ने की। मीटिंग का अहवाल जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा। बिल्कुल, किसानों को क्रैशिंग और इसी के साथ मिल में दरपेश मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज जमात इस्लामी जंग का जो है वो इज्तिमा हुआ, जिसमें जिसकी सदारत जो है वो ज़िले अमीर फरीद मियाना ने की। यहाँ पर जो है वो बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की और अपने मसाइल के बारे में ज़िले अमीर को बताया। इस बारे में हम बात करते हैं। सर बताइएगा, क्या मसाइल हैं जो किसानों को दरपेश आ रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ मीडिया का कि उन्होंने किसानों के इस मुश्किल वक्त के अंदर उनकी आवाज़ सुनी और उनको अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का ज़रिया बने। मामला ये है कि एक तो हमारी मिलें जो है वो लेट चली हैं, जिसकी वजह से हमारी गंदम की काश्त जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर पहले भी हो चुकी है। और अब जो मिल माफिया है उनके हुकूमत के साथ जो भी मामलात थे उन्होंने उसका सारा नज़ला किसानों के ऊपर डाल दिया है। अब इस वक्त 100 मन फीट ट्राली से कटौती की जा रही है।
ये पता नहीं समझ से बाला तार है कि 400 मन 500 मन गन्ना लाता है किसान और उसमें से 100 मन की कटौती कर लेते हैं कि ये इसकी सफाई नहीं है, इसका फलां है, इसका फलां मसला है। और इसके साथ ये है कि नॉन वैरायटी, अगर गवर्नमेंट ने अगर कोई नॉन वैरायटी है तो गवर्नमेंट इसको 6 माह पहले अनाउंस उसको करना चाहिए। अब गन्ना तैयार हो गया, इस वक्त नॉन वैरायटी और किसानों को वो रोडों के ऊपर निकाल दिया है। इसलिए जमात इस्लामी जो है इसके ऊपर भरपूर एहतजाज करती है। और अगर डीसी साहब ने और एसी साहब ने अगर इसका फौरी नोटिस ना लिया तो फिर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। आरपीओ फैसलाबाद सरफराज अहमद फल्की की डीपीओ इमरान मलिक के हमरा जिला चन्योट के पुलिस अफसरान से मीटिंग हुई। आरपीओ ने दौरान मीटिंग जिला में अमन और अमान की सूरत हाल, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया। क्राइम की सूरत हाल का जायजा लिया गया है। आरपीओ फैसलाबाद सरफराज अहमद फुल्की की डीपीओ इमरान मलिक के हमरा जिला चन्योट के पुलिस अफसरान से मीटिंग हुई। आरपीओ ने दौरान मीटिंग जिला में अमन और अमान की सूरत हाल, ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, क्राइम की सूरत हाल का जायजा भी लिया है। आपको बता रहे हैं कि क्राइम की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया है। आरपीओ फैसलाबाद सरफराज अहमद फुल्की की डीपीओ इमरान मलिक के हमरा जिला चन्योट के पुलिस अफसरान से मीटिंग हुई। मीटिंग में आरपीओ ने दौरान मीटिंग जिला में अमन और अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।